बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हुकाम एहतिशाम। नाज़रीन, हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शों को बंद करने का असूली फैसला कर लिया है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी मामले को डिस्कस करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम जाएंगे बॉडी मेकर्स के पास, हम जाएंगे रिक्शा डीलर्स के पास, हम जाएंगे रिक्शा ड्राइवर्स के पास और उनसे हम जानेंगे कि हुकूमत के इस फैसले पर वो क्या कहते हैं। और साथ में हम उन अवाम की भी राय आप तक पहुँचाएँगे जो रोज़ाना की बुनियाद पर एक जगह से दूसरी जगह इन चिंची रिक्शों पर जो है वो सफ़र तय करते हैं। तो चलते हैं फिर अवाम की जानिब। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिक्शा डीलर्स जो चिंची रिक्शे को सेल करते हैं, पुराने लेते हैं और फिर जो है वो उनको आगे सेल करते हैं। इनसे हम जानते हैं कि हुकूमत का जो ये इकदाम है ये इनके कारोबार पर जो है वो किस तरह असरअंदाज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सर गुलाम मुर्तज़ा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने अब कमर कस ली है। वो कहते हैं कि जो चिंची रिक्शे हैं इनको हमने हर सूरत बंद ही करना है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये गवर्नमेंट ने क्या तो है बिल्कुल जरूर के बंद कर देने है ने, लेकिन उन्होंने ना एक इन्हों की कढ़िया है रूट पासिंग वगैरह कढ़ी हैगी है कि इन्हों ना असी चलावांगे। जो नवा है वा उन्होंने बंद किया जाएगा, तो जो पुराना चल रहा ना वह 4 महीने का टाइम दिता। 4 महीने के अंदर अंदर कहते इनू रजिस्ट्रेशन करवाओ अपनी, ठीक है ना। तो वो अंदर पुराना जोड़ा वा इन्होंने बेसिकल सारा बंद कर दिता। जो मेकर है ना वो बंद किया है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਡੀਲਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਿੰਚੀ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਵੀ ਵੇਚੀਏ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਿੰਚੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15 ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰੰਗਸਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਨਾ ਤੇ ਬੱਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਸਵਾਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਚਿੰਚੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਰੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਚਿੰਚੀ ਦੇ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖ ਦੇਣ ਇੱਕ ਚਿੰਚੀ ਦੀ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, 2 ਲੱਖ ਰਸ਼ਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਢ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 2000 ਫੀਸ ਰੱਖ ਦੇਣ, 1000 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦੇਣ, 3000 ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੰਨ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਵਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ रश्के तो। अच्छा, गवर्नमेंट ये कहती है कि जब चिंची ड्राइवर जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन करते हैं तो हम जब इन्हें चलान करने लगते हैं तो चलान इनको बाइक्स वाला ही होता है, मोटरसाइकिल वाला ही चलान होता है। जी बिल्कुल बाइक का ही होता है, लेकिन इनको चाहिए ना कि क्योंकि जो चलान होता है वो भी गवर्नमेंट को पैसे जाते हैं ना। लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये रजिस्टर करवाएं तो इनको हम उस रिक्शे के हिसाब से जो है वो हम चलान करेंगे, क्योंकि ये तो बाइक वाला भी चलान पे कर रही है। जी बिल्कुल बात यही है ना, अगर वो चलान करेंगे तो डबल कर दें, वो अफोर्ड करेंगे। अगर उन्होंने रोज़ी रोटी यहाँ से कमानी है तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने पे करना है। ये 200 रुपये चलान कर रहे हैं, 1000 रुपये कर दें, वो पे करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो सवारियाँ आपके साथ जो है वो सफ़र करती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आती जाती हैं, वो सवारियों में भी ये परेशानी की लहर पाई जा रही है, क्योंकि उनके मुताबिक तो जो है वो बड़ी ट्रांसपोर्ट के तो किराए बहुत ज़्यादा हैं। भैया देखो ना, हूँ भाई रिक्शा चलाते हैं, दिखाना जी पर्ची
ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, क्योंकि आवाम का भी नुकसान है तो गवर्नमेंट का तो फायदा ही होना। ठीक है, हमारे साथ एक और इस वक्त रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनका आज चलान हुआ है, इनसे हम जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, आपका चलान हुआ है जी। आपने क्या वायलेशन किया है? डब्बा लगाया। अच्छा, आपने वहाँ पे म्यूज़िक लगाया इस वजह से? हाँ जी। ठीक है, तो ये जो हुकूमत कह रही है कि हमने चिंची रिक्शे बंद करने हैं, तो आपका इस मामले पर क्या कहना है? ਸਰ ਚਿੰਗਚੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਦ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚਿੰਗਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 600 ਰੁਪਏ ਤਰੀਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ 600 ਰੁਪਏ ਤਰੀਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਪਰਮਿਟ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਰੂਟ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ 2000 ਕੀ 4000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ 18000 ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਥੇ 4000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, उनका जो है वो ज़रिया रोज़गार, ज़रिया मुआश यही है। अगर ये वो बंद करते हैं या इस पर एक्शन होता है तो आपकी ख़ानदान के लिए तो फिर ये बहुत मसाइल बनेंगे। फिर क्या होगा जी, मजदूरी होगी। फिर मेरी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, फिर वो क्राइम बढ़ जाएगा। अगर रोज़गार लोगों का बंद हो जाएगा ना, फिर क्राइम बढ़ जाएगा, चोरियाँ, डकैतियाँ, वारदातें, लूट मार, फिर ये शुरू होगा। आप इस मामले पर हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार, ये रोज़गार चलता है सबका, हमारे भी बच्चे हैं, वो सारे पलते हैं इस पे, इसको चलने दें। ठीक है, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि हालात जैसे भी हों उनको चलने दिया जाए। एक और इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? अरशद अली। क्या करते हैं आप? रिक्शा डीलर हूँ। अच्छा, रिक्शा डीलर हैं। मुझे ये बताइए कि हुकूमत ये ठीक करने जा रही है? उन्होंने कहा कि हमने रिक्शों को बंद करना है। अब एक तो ये आलूदगी फैलाते हैं, दूसरा रैश ड्राइविंग करते हैं। नहीं, हुकूमत से ये मेरी यही अपील है कि हमारा ये रोज़गार है, इसे चलने दें। अगर 22 करोड़ आवाम है ना, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, उनमें से तकरीबन 7 करोड़ जो आवाम है ना, वो रक्षा चला रही है, रक्षे से अपना रोज़गार चला रहे हैं, रक्षे से उनके घर के चूल्हे जो है वो चल रहे हैं। उनको बंद नहीं करना चाहिए। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हमारा रोज़गार जो है ना वो चलने दे। बस हुकूमत कहती है कि ये जब वायलेशन करते हैं ना, तो तब इनको उस तरह का चालान नहीं हो सकता, क्योंकि इनको जो है वो हम मामूली से एक बाइक वाले चालान कर सकते हैं, तो ये वो पे कर देते हैं और उसके बाद फिर से जो है वो वायलेशन करते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है। हुकूमत को, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्हें टैक्स लगा दे, ठीक है, बॉडी को टैक्स लगा दे। मोटरसाइकिल तो रेगुलर हम टैक्स पे कर रहे हैं, एक्साइज दफ्तर हमसे टैक्स ले रही है, बॉडी का टैक्स नहीं है। बॉडी को भी नंबर कोई इशू करते हैं, बॉडी का भी नंबर इशू करते हैं, कोई ऐसे हर्ज नहीं है इसमें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कहना है जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो रिक्शा डीलर हैं, उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो इस मुतालिक एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए और हमारे साथ कोऑपरेट करे। हम उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए जो है वो तैयार हैं। एक और इस वक्त हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुरम शहजाद जी। क्या करते हैं? बॉडी मेकर। अच्छा, बॉडी मेकर हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ठीक करने जा रही है हुकूमत, और आपका जो ज़रिया रोज़गार है ये कितना मुतासर हो सकता है हुकूमत के इस इक़दाम? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। इन्होंने जिस दिन से पाबंदी आयद की है उस दिन से कोई कारोबार जो है ना वो सब फुल स्टॉप है। कोई काम नहीं हो रहा, कोई गाहक नहीं आ रहा, कोई जा नहीं रहा, कोई शय खरीद नहीं रहा, कोई खरीद फरोख्त कर नहीं कर रहा। लिहाजा देखो, इन्होंने पासिंग कर दी है रिक्शे की, शुरू हो गई पासिंग। गवर्नमेंट ने फैसलाबाद, लाहौर, हर जिले 'ਚ पासिंग शुरू हो गई है रिक्शे की। पासिंग जो हो गई है शुरू, तो सानू भी इजाजत दी जाए कि असी माल बेच सकीए। पुराना माल अं लेने, पुराना बेचते हैं, नवा ही ना लेने ना ही बेचते हैं, ना बनाने हैं। लिहाजा जोड़े वा पुराणिਆਂ ਨੂੰ इन्नी तो इजाजत दी जाए कि यार पुराना माल ले लो, बेच लो, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो ख़रीदार थे या जो फ़रोख्त करने वाले थे वो तो अब बिल्कुल ही ठप हो गए। बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार। ना कोई खरीदारी कर रहा वा, ना कोई सेल कर रहा। खौफज़दा हो गए आ, खौफज़दा हो के ना कोई बंदा सेल कर रहा वा, ना कोई बेच रहा, ना कोई लै रहा। ਉਹਦੀ वजह कि खौफ फैल गया पूरे शहर दे विच, पूरे पंजाब दे विच कि भी पता नहीं की बनना वा।
रिक्शा विकदा नहीं विकदा, चलदा नहीं चलदा, 100 मसले मसाइल खड़े हो गए। अच्छा, हर बंदा रोज़ी तो बेरोज़गार हो गया। हुकूमत ये कहती है कि ये एक तो शहर में आलूदगी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और दूसरा जो है वो प्रॉपर जो है वो अपने जो इनके रिक्शे हैं सही टाइम पर जो है उनकी ट्यूनिंग वगैरह, उनका मोबाइल वगैरह चेंज भी नहीं करवाते हैं। सर गल ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੋਰ ਸਟੋਕ, ਇਹ ਆਲੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ। ਲਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ 1000 ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 10 15 ਰਿਕਸ਼ੇ ਗਲਤ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ 15 ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 1000 2000 5000 10000 ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, 15 ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਮਗਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ देना चाहिए वा ज़्यादा। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो है वो रिक्शा डीलर्स मौजूद थे, रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद थे। इनकी बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है और इनका कहना है कि हुकूमत को अगर इनको बंद करना है तो हुकूमत कम अज़ कम ये देखे कि उस एक फ़र्द वाहिद के पीछे जो है उसके पूरा का पूरा ख़ानदान बैठा है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने सवालों के सिलसिले को जो है अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? उस्मान गिल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शों का ही काम करता हूँ। अच्छा, एज अ ड्राइवर, एज अ डीलर? एज ए डीलर। अच्छा, एज अ डीलर। मुझे ये बताएं कि कितना कोई असर पड़ा है हुकूमत के इस ऐलान के बाद, इस इकदाम के बाद कि अब कोई चिंची रिक्शा नहीं चलेगा? पहले तो मैं गवर्नमेंट के ये जो उन्होंने फ़ैसला किया है इसका खैर मकदम करता हूँ कि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है इसके मतलब हम गवर्नमेंट के फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं, उनके साथ हैं। और दूसरा जो इन्होंने ये जो डीलर हजरात हैं इनको बंद किया है कि रिक्शा सेल नहीं करना, इनको चाहिए कि जो डीलर जो बाडियाँ तैयार कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, उनको बंद किया है, हमें तो ना बंद करें। कम से कम अगर कोई छोटा कारोबार कर रहा है यहाँ पे उनको कोई टैक्स वगैरह लगा के उनको कारोबार के अंदर लाएं, बिज़नेस करने दें उनको। ये नहीं होना चाहिए कि बिल वक्त उसको बंद कर दें और उसको पूछे भी ना कि क्या आपका मसला है क्या नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन का फ़ैसला किया उसका खैर मकदम करते हैं हम। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि साथ में हुकूमत ये भी कह रही है कि हमने अगर ये इकदाम उठाया है तो इसमें जो है वो आम आवाम का ही फ़ायदा है, क्योंकि ये रिक्शे जो है वो एक तो एक कम उम्र बच्चा जो है या कम उम्र एक लड़का जो है वो रिक्शा चला रहा होता है, उसने 8-8 10-10 पैसेंजर बिठाए हुए होते हैं, तो ये भी ना सिर्फ सफ़र करने वालों के लिए बल्कि जो उसमें सवार होते हैं इनके लिए भी मुश्किलात का सबब बनता है। जी बिल्कुल, ऐसा भी होना चाहिए। जो 18 साल से कम उम्र है, आईडी कार्ड नहीं बना, उनको बंद करना चाहिए। जो इसके मतलब जानता है उसको ही चलाना चाहिए। और जो मैं समझता हूँ कि जो बच्चों को देना है वो सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी है, हमारे लोगों की कमज़ोरी है, जो इसको समझते नहीं हैं कि बच्चों की वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। इनको चलान भी करना चाहिए, इनका रिक्शा भी बंद करना चाहिए। और ठीक है, हमारे साथ इस वक्त कुछ डीलर मौजूद थे, इनसे बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी था। इनका कहना था कि हम हुकूमत के इस इकदाम का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि जो डीलर हजरात हैं इनको भी मौक़े फराहम किए जाएँ कारोबार करने के। एक और इस वक्त हमारे साथ शहरी इमाम मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राणा उमर जी। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप क्या काम करते हैं? मैं जी बाडियाँ का काम करता। अच्छा, पुरानी बॉडी। जी जी। अच्छा, मुझे ये बता अच्छा सेल परचेज, मुझे ये बताएं कि कितना कोई असर आपके इस कारोबार पे पड़ा है हुकूमत के इस ऐलान के बाद? सर असर तो इन्ना कुछ पड़ गया भी असी साढ़े ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 20,000 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਰੇशान ना करना। अच्छा ये बताएं कि अगर हुकूमत जो है वो इस बात पर रजामंद नहीं होती और वो आपको कारोबार करने की इजाज़त नहीं देती तो फिर इसके अलावा कोई और कारोबार? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਇਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, शहरियों का कहना है कि हमारा जो है वो वाहिद सरमाया है ये काम कारोबार, और अगर इसको बंद किया जाता है तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे ख़ानदान जो है वो भूख से ही मरेंगे। एक और इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर बाजवा। अच्छा, क्या काम करते हैं जी आप? ये मैं जो मोटरसाइकिल रिक्शा है ना, ये हमारी ये यूनियन है। हाँ जी। मैं यूनियन का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। तो हमारी पब्लिक डीलिंग होती है, ड्राइवरों को भी देखते हैं, इनके हालात वाक़यात भी देखते हैं। जी हाँ। तो ये लोग सुबह आते हैं जब बर्फ़ पड़ी होती है, फिर शाम को बर्फ़ पड़ी होती है, फिर भी मजदूरी करते हैं। तो सवारी को इतना फ़ायदा है कि 20-30 रुपए में सवारी अपने पॉइंट पे, अपने अड्डा पे पहुंच जाती है। तो स्कूलों के बच्चों को भी फ़ायदा है, ये घरों से उठाकर स्कूलों में ले जाते हैं। तो हम वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ने अगर रजिस्टर करनी है तो हम इसके हक़ में हैं। गवर्नमेंट ने रूट पासिंग करनी है तो हम इनके हक़ में हैं। तो गवर्नमेंट अगर ये करती है कि इनको बगैर किसी बात बताए बंद कर दो तो ये हम नहीं होने देंगे। तो अरसा 30 साल के अंदर ये रिक्शा शहरों में लाखों की तादाद में है, बमैल लोडिंग वाले, बमैल मोटरसाइकिल सवारी वाले। तो हर दुकानदार ने अपना अपना रिक्शा लोडिंग के लिए ये मोटरसाइकिल बनाया हुआ है, उसका कारोबार वाबस्ता है। तो उसने एक ड्राइवर रखा है तनख्वाह पे, वो बेचारा तनख्वाह लेकर अपने घर का चूल्हा चलाता है। तो हमारे ये जो रिक्शा सवारी वाले चलाते हैं, ये रोज़ी कमा कर अपनी फैमिली, अपने माँ बाप की कफालत करते हैं। पेट्रोल पंप वालों को फ़ायदा है, टायरों वालों को फ़ायदा है, सफ़ेद पार्ट वालों को फ़ायदा है। तो ये गवर्नमेंट होश के नाखन ले, ये हमें बंद करने आखिर किस वजह से बंद करते हैं? तो हमें वो कहते हैं कि एक तो जो है वो आलूदगी फैलाते हैं, दूसरा ये जो है वो टाइम पे जो है वो ना रिक्शों की ट्यूनिंग करवाते हैं, तीसरा अगर इनको वायलेशन करते हैं तो इनको जब चालान किया जाता है तो इनको चालान जो है वो बाइक वाला किया जाता है क्योंकि ये बाइक के तौर पर रजिस्टर्ड है। नहीं, हम ये चाहते हैं, अरसा 20 साल से हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट में इनको कन्वर्ट करें, इनको मंजूर करें। हमारा तो वो चालान स्लिप पे खाना ही गवर्नमेंट ने नहीं रखा। अगर गवर्नमेंट हमें मंजूर करती है तो मोस्ट वेलकम करे। जो आलूदगी फैलाता है उसको चालान करे, उसको जब्त करे। जो कम उम्र चलाता है उसको बंद करे। हम तो इसके हक़ में हैं, बंद करे। जो ओवरलोडिंग करता है हम उसके भी खिलाफ हैं। 6 सीटर रिक्शा हमारा मंजूर है। हमारा रिक्शा 6 सवारियाँ लेकर जाए, जो 7 आदमी बिठाता है। ये वार्डन किस लिए लगाई है रोडों पे कि वैसे चालान करके चले जाओ, किसी को चेकअप ही ना करो। किसी 9 सवारियाँ बिठाई हैं तो हम तो उसके खिलाफ हैं, इंसानी जाने हैं। तो गवर्नमेंट करे। साथ में ये भी मुझे बताएं कि अगर गवर्नमेंट हुकूमत ये कहती है कि हमने जो है वो बंद करने हैं हर सूरत में, और डीलर्स को भी जो है वो कोई ख़ास इस पर जो है वो रिलीफ नहीं दिया जाता, उनकी भी सुनवाई नहीं की जाती, तो फिर आप इस फैसले को सरखम तस्लीम करेंगे या फिर एहतजाज करेंगे? हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और लाखों की तादाद में हमारे पास जो लोग हैं, जो लोग हमारे साथ सफ़र करते हैं ना, वो भी कहते हैं, स्कूल वाले भी कहते हैं कि हमें भी दावत दो। हमारे स्कूल चलते हैं, 10-10, 20-20 रिक्शे हमारे बच्चों को लेकर आते हैं। हम स्कूल वालों को, प्राइवेट स्कूल वालों को साथ मिलाएंगे। हम जो बॉडी मेकर हैं, जिनका कारोबार इन्होंने बंद किया है, तो हम उनसे भी वाबस्ता हैं, इनको भी साथ मिलाएंगे और लाखों लोगों को सड़कों पर ले आएंगे। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? मुतबादल दे देगी हमको। हम अपनी रोज़ी, अपनी मदद आपके तहत कमाते हैं, तो गवर्नमेंट हमसे रेवेन्यू ले, रूट के पैसे ले, लाइसेंस के पैसे ले, तो गवर्नमेंट को तो मुनाफा है। तो हमारा कारोबार गवर्नमेंट बंद करना चाहती है, तो आखिर क्या वजह जिससे बंद कर दी हमें बताएं, तो बंद करेंगे। बंद हम नहीं होने देंगे, हम बहुत कुछ करेंगे।
अच्छा, आपका कहना है कि हम बहुत कुछ करेंगे, हम बंद नहीं होने देंगे। नाजरीन, इस वक्त जो है वो हमारे साथ रिक्शा यूनियन के नायब सदर मौजूद थे और इनका कहना था कि हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी की जाती है, हुकूमत जो है वो हमारी बात नहीं सुनती, तो लाखों की तादाद में हम यहाँ पर जो है रिक्शा मालिकान, साथ में उनकी अटैच जो फैमिलीज़ हैं उनको, साथ में वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं रिक्शों का, हमारे साथ स्कूल वाले, उनको लेकर जो है वो हम सड़कों पर आएंगे और एहतजाज करेंगे और जो हुकूमत है इसको हम जो है वो फिर टफ़ टाइम देंगे। नाज़रीन, इस वक्त बात करने का हमारा सिलसिला जारी है, इसको आगे बढ़ाते हैं। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं आप? भाई मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। मुझे ये बताएं कि कैसे देखते हैं हुकूमत के इस फैसले को? क्या हुकूमत ठीक करने जा रही है, बंद करती है, डीलरों को तंग करती है? वो गलत कर रही है हुकूमत हमारे साथ। छोटे छोटे बच्चे हमारे भाईजान, हमारा काम है, ये बंद हो गया, हम क्या करेंगे इसके बाद? हमारे पास कोई और रोज़गार नहीं है रिक्शे के सिवा। हम इससे चलाते हैं, 500-700 कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, बस यही हमारे पास हमारा काम है, और कोई हमारे पास काम नहीं। हुकूमत के साथ हम मुतालबा रखते हैं, हमें कोई रिक्शा बंद करना चाह रहे हैं तो फिर हमें कोई काम भी ढूंढ के दें, ऐसे काम नहीं बनेगा हमारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जो है वो हुकूमत ये कहती है कि आलूदगी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं और जो है वो रैश ड्राइविंग करते हैं, इस तरह के मौक़िफ़ जो हैं वो हुकूमत की तरफ से सामने सर हमारे पास आलूदगी वाला रिक्शा ही नहीं है, हमारे पास दूसरा रिक्शा है। वो दूसरी जामे वाली गाड़ी होती ना, वो आलूदगी फैलाती है, हमारे पास वो रिक्शा नहीं है। तो ठीक है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे कुछ रिक्शा ड्राइवर थे और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं रिक्शा यूनियन के, उनका भी मौक़िफ़ आपने सुना। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी नाज़रीन, मुसाफिरों से भी हम बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि हुकूमत के इस फैसले को जो है वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़हद अली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि हमने चिंची रिक्शे बंद करने हैं, आप क्या कहते हैं, क्या बंद होने चाहिए? नहीं, क्यों होने चाहिए बंद? ये बिल्कुल ईजी है, गरीब आदमी के लिए बिल्कुल ईजी है। किराया कम इनका, और जो दूसरी सवारी होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर हुकूमत ये बंद करती है तो इसका असर आम आदमी पर भी होगा? आम आदमी होगा बिल्कुल। आप कहते हैं कि ये बंद नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त रिक्शे में बैठी हुई कुछ पैसेंजर्स मौजूद थे, उनसे जो है वो हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी है और वो कह रहे हैं कि बंद नहीं होने चाहिए क्योंकि आम आदमी के लिए जो है वो अफोर्डेबल सिर्फ यही रिक्शा है। नाज़रीन, हमारी जो है वो बात करने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी नाज़रीन, कुछ और पैसेंजर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? दिलदार जावेद साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि हमने रिक्शे बंद करने हैं, क्या ये ठीक कर रहे हैं? नहीं, ये तो आवाम के लिए सस्ती सवारी है, ये तो बंद नहीं होने चाहिए। जो नॉर्मल बंदा है वो इसी पर सवारी करेगा और अपने मुकाम पे जाएगा। अच्छा, अगर हुकूमत बंद करती है तो फिर इसके क्या असरात पड़ता? ये है कि रोड पे ये ना लोग रोड पे ही आएंगे, पैदल ही जाएंगे, फिर यही हो सकता है, और क्या होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी हुकूमत को जो है वो बंद नहीं करना? नहीं। ठीक है नाज़रीन, हमारी जिन जिन मुसाफिरों से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि अभी जो है वो हुकूमत को ये बंद जो है वो नहीं करने चाहिए। नाज़रीन, हमारा जो है वो मुसाफिरों से बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जहांजीब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत कह रही है जहांजेब भाई कि हमने रिक्शे बंद करने हैं क्योंकि ये जो है वो माहौलियाती आलूदगी फैला रहे हैं और जो है वो ख़तरनाक हादसात का सबब बन रहे हैं, क्या ये ठीक कर रही है हुकूमत? ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੇ, यही काम है ना। हाँ जी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं तो हमें वो कमाने दी जाए? हाँ जी, ਅਸੀਂ कमाने अलहमदुलिल्लाह सानू कमान दिओ। बल्कि अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि हमें चिंची रिक्शे वालों से एतराज़ है कि ये वायलेशन बहुत करते हैं। ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਵਰੇ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, हुकूमत नमाजी भी है। आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। अच्छा, अगर वो आपकी अपीलें जो है वो मुस्तरद कर देते हैं, रिक्शे बंद कर देते हैं, फिर उनका फैसला मानेंगे या फिर एहतजाज करेंगे? ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ठीक ਸਾਰੀ है। ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ ਉੱਦਾਂ मैं भी होऊंगा। ठीक है, इनका कहना है कि जिस तरफ बाकी सब जो होंगे मैं भी उसी तरफ ही हूँगा, और अगर बंद करती है हुकूमत, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे ये ख़ानदान इनसे वाबस्ता हैं, हमारे जो है वो पूरी की पूरी फैमिलीज़ हमारी तरफ देख रही हैं, तो ये ना सिर्फ इकलौता हम पे असर होगा बल्कि पूरा ख़ानदान इससे जो है वो मुतासर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुड्डू खान है। मैं अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत कह रही है कि हमने जो है वो ये रिक्शे बंद करने हैं, क्या हुकूमत ये ठीक कर रही है? बहुत ये सब गलत है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए जो भी है ना, यही रक्षा है 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये में घर पहुंच जाता है आदमी। तो जब दूसरा हम ऑटो रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ऑटो रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें ये है कि 20 रुपये दिए हम जाकर अपने घर के नज़दीक उतर जाते हैं, फिर उधर से 10 कदम पैदल चलना पड़ता है हमको, तो फिर भी हम घर 20 रुपये में पहुंच जाते हैं। तो ऑटो रिक्शा हमारे से 50 रुपये या 100 रुपये मांगता है, तो हम कहाँ से देंगे? मैं 500-600 रुपये की दिहाड़ी लगाने वाला हूँ, तो मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा ये महीने का? अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि ये जो है वो माहौल में आलूदगी फैलाते हैं, उसके अलावा जो है ये रैश ड्राइव करते हैं। अगर इनका क्या है कि धुआं मारती है ना, तो उस गाड़ी को उसी वक्त बंद कर दो। जो गाड़ी धुआं मारती है उस गाड़ी को उसी वक्त बंद कर दो, या उसी को उसके ऊपर फ़कत फ़ाइन करो। जब आप फ़ाइन करोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपकी मेहरबानी है, हुकूमत से इल्तिजा है हमारी कि ये गाड़ियाँ चलती रहने दो, क्योंकि हमारा जो है ना इससे ये है कि हम आ जाते हैं चले जाते हैं, 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये तक जो है ना ये हमारा घर तक पहुंच जाता है हम आदमी। आप कहना चाहते हैं कि अगर हुकूमत ऐसा इनिशिएटिव लेती है तो इससे जो है वो गरीब आवाम को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो बहुत नुकसान होगा, कहीं ऐसा वैसा नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मेहरबानी है आपकी, हम हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि यार ये जो है ना भाई आप ये काम नहीं करो, ये गाड़ियाँ बंद मत करो, क्योंकि हमारा ये है कि हम 20-30 रुपये में घर पहुंच जाते हैं हर हाल में। ठीक है नाजरीन, हमारे साथ मुसाफिर मौजूद थे, हमने उनकी भी जो राय है वो आप तक पहुंचाई है, और उनका कहना है कि हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि खुदारा ये आप बंद ना करें, क्योंकि हम 20-30 रुपये देकर जो है वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमसे ऑटो रिक्शे जो हैं उनके किराए हमसे बर्दाश्त नहीं होते। नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीब ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिक्शा यूनियन पंजाब के सदर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे इस अहम मामले पर जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि हुकूमत जो है वो गैर रजिस्टर्ड जो रिक्शे हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करती हमें नज़र आ रही है, इस इनिशिएटिव पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसका बेहतरीन ये फ़ैसला है कि रिक्शों को रजिस्टर्ड किया जाए, और हम इसकी तायद भी करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जब भी कोई हुक्मरान किसी चीज़ पे कानून साजी करने की कोशिश करता है तो उनके साथ वो लोग मशावरत में शामिल होते हैं जो खुशामदी होते हैं, जो इब्नुल वक्त होते हैं, जिनके अपने मफादात इसके अंदर मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि 1990 के अंदर गवर्नमेंट जो थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उन्होंने बहावलपुर के अंदर इसको स्टार्ट किया, और बूरे वाला और इसके गिरदो नवा के अंदर जो मिस्त्री वहाँ होते थे उनको हायर किया, उनकी तावन से उन्होंने ये रक्षा बाडी जो है वो बनाई, और 33 सालों से ये रक्षा जो है वो आवाम को सस्ती और तेज़ तरीन सहूलत जो है वो फराहम कर रहा है। ज़रूरत इस बात की थी कि हमारे असम्बलियों के अंदर जो लोग बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि इनकी कानून साजी करते।
जबकि तांगा जो माजी के अंदर तांगा है, तांगे की शक्ल में ये जदीद सवारी इन्होंने मुतारफ़ की। जब तांगे को इन्होंने शेड बने हुए थे, उनके बाकायदा फट्टा उनको लगता था, उनको ये पानी, घोड़ों के पानी पीने के लिए खुरलियाँ मौजूद थीं और पार्किंग की जगह मौजूद थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सवारी को भी उसी तनाज़र के अंदर पार्किंग की जगह दी जाती, इनके रूट परमिट बनाए जाते, तो फिर ये जो आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर रक्शे जो हैं वो हर शहर के अंदर मौजूद हैं, ये ना बढ़ते, इनके रूट बन जाते और ये लोगों को बेहतर सफरी सहूलत दे पाते। अब भी मैं ये समझता हूँ कि रजिस्ट्रेशन की बात आई है, हुकूमत पंजाब जो है वो रजिस्ट्रेशन की तरफ आ गई है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है, खुशाइन बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ इनको जो बॉडी मेकर हैं, जो डीलर हैं, जो शोरूम वाले हैं, भाई उनका भी ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए, ना कि उनकी पेट पे लात मारी जाए। हमेशा यही होता है कि सरमायादारों को नवाजने के लिए जो कमज़ोर, माड़े, गरीब लोग हैं उनके पेट पे लात मारी जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ये रजिस्ट्रेशन हो रही है वहीं आपने, गवर्नमेंट ने वो बॉडी मेकर, शोरूम वाले और दीगर जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं उनका कारोबार इन्होंने बंद कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक चीज़ पे पाबंदी लगाते हो तो फिर हुकूमत का ये काम होता है कि एक जगह आप पाबंदी लगा रहे हो तो दूसरी जगह आप उसका मुतबादल दें, लेकिन हुकूमत ने मुतबादल तो नहीं दिया। इन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि दुकानें सील कर दें, शोरूम वालों को सील कर दें। मैं ये समझता हूँ कि उनकी जमा पूंजी है, वो लोग कारोबार कर रहे थे और पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है उन्होंने ब्लॉक कर दी। आज हकीकत है कि पंजाब के अंदर वो लोग लाखों की तादाद के अंदर हैं, जिसमें मिस्त्री भी हैं, जिसमें बॉडी मेकर हैं, जिसमें डीलर हैं, जिसमें वो रंग साज हैं, जिसमें टायर शॉप वाले हैं, ये बेशुमार लोग स्पेयर पार्ट वाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ, हुकूमत से मुतालबा भी करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस तनाज़र के अंदर इनको भी देखे और जैसा कि कहा गया है कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो तो फिर मैं ये समझता हूँ कि डीलरों को इजाज़त दी जाए कि वो पुरानी वो जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उन गाड़ियों को जो है वो फ़रोख्त करने का जो है वो अहकाम सादर हों कि जी वो जो रजिस्टर्ड हो गई हैं वो गाड़ियाँ वो बेचें। इस तरह बॉडी मेकर हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बना लें, क्योंकि ये वो लोग हैं कि हकीकत इनको कहें कि जहाज़ बना लें तो ये जहाज़ भी बना के गवर्नमेंट को दे सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुल्क के अंदर वो माफिया मौजूद है, कमीशन माफिया, जो अपने कमीशन की खातर पाकिस्तान का जो टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर जो काबिलियत है उसको दबा के रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कभी 1957 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इतनी तेज़ी के साथ इंडस्ट्री लगी, यानी टायरों की फैक्ट्री यहाँ पे लगी, यहाँ पे आपका ये जो ट्रक हैं वो यहाँ पे बनने शुरू हो गए, यहाँ पे आपके ट्रैक्टर बनने शुरू हो गए और इसी तरह की दीगर इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो थी वो मौजूद थी। लेकिन अफसोस यही है कि हमारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से कि हमने अपने जो लोग हैं, मुल्क का जो सरमाया है, उनको हमने दबाया, उनका कारोबार हमने बंद किया और यही चीज़ें जो है वो बाहर से हम जो है वो मंगवाते हैं, जिसकी वजह से आज हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल पैदा हुए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किस नौइयत के मसाइल जो है वो जन्म लेने के इम्कानात हैं जब एक आम जो है वो बॉडी मेकर को, जब एक डीलर को उनके कारोबार से महरूम किया जाएगा तो किस नौइयत के आपको लगता है कि मसाइल पैदा होंगे और ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं? देखिए जी, जब किसी को रोटी ना मिले, रोटी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, महंगाई पहले ही आसमानों को छू रही है और आपने जब इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई है, इनको कोई मुतबादल नहीं दिया, तो इसका नतीजा ये होगा कि ये लाखों लोग जो हैं ये भूख से मरेंगे, इनके बच्चे भूख से बिलकेंगे, सिसकेंगे और नतीजतन ये होगा कि ख़ुदकुशियाँ बढ़ेंगी, जराइम का इजाफ़ा होगा। और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस तनाज़र के ऊपर भी सोचना चाहिए। बहैसियत यूनियन जो रजिस्टर्ड यूनियन है, पूरे सूबे के रक्षा ड्राइवरों की नुमाइंदा तंजीम है और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बैठे। मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एजाज़ हासिल है कि हमने अपने प्रपोज़ल जो थे वो पिछले दिनों लिख के हमने वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ मिले, जो PTA सेक्रेटरी हैं फैसल सुल्तान, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने
वो हमारी जो प्रपोजलें थी उनको पढ़ा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये मुस्बत आपकी तजावीज़ हैं, और उन्हीं के ऊपर आज फ़ैसला उन्होंने किया है। और पहले मरहले पे जो पहले चलने वाली बाडियाँ हैं उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है रक्षों को। और मैं ये समझता हूँ कि आगे हमारे जो मुतालबात थे जो हमने लिख के उनको दिए थे कि जी इनको पासिंग भी इनकी होनी चाहिए, इनको रूट देने चाहिए, ताकि ये जो हज़ारों की तादाद के अंदर एक रोड पे के ऊपर रक्शे चल रहे हैं इनके अंदर कमी आएगी, ये ट्रैफिक मसाइल के अंदर भी कमी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो रक्षा ड्राइवर है उसके रोज़गार के अंदर भी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि बॉडी मेकर हैं उनके हवाले से भी पॉलिसी बना ली जाए कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे गुंजाइश है वहाँ पे वो बाडियाँ बना के रक्षे मुकम्मल बना के वो दें। यानी कि देखें, अगर हम बड़ी फैक्ट्री को इजाज़त देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि छोटे पैमाने पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको स्मॉल इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। आप उनको स्मॉल इंडस्ट्री का दर्जा दे के आप थोड़ा बहुत उनके ऊपर आप टैक्स आयद कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत टैक्स भी अगर आयद करेंगे तो अरबों खरबों रुपए गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर भी आएंगे, और हमारे पाकिस्तान के लोग जो हुनरमंद हैं, हकीकत है कि उनका जो चूल्हा है वो भी बुझेगा नहीं। अच्छा, हुकूमत ये भी साथ में हमें कहती हुई नज़र आती है, और वो ये भी कहते हैं कि एक तो ये बड़े ख़तरनाक अंदाज से ड्राइविंग करते हैं, ना सिर्फ अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं बल्कि जो इनके साथ बैठे होते हैं, जो पैसेंजर बैठे होते हैं, मुसाफिर जो होते हैं, उनकी जानों को भी ये ख़तरे में डालते हैं। तो इस हवाले से भी क्या कहें? देखिए, जुर्म जो होता है ना उसकी कोई शक्ल नहीं होती। अगर मैं जुर्म कर रहा हूँ तो मैं उसका गुनाहगार हूँ। अब जो रक्षा है, रक्षा तो जुर्म नहीं कर रहा, उसके ऊपर जो ड्राइवर है वो गलती कर रहा है। अब देखें, गवर्नमेंट कहती है कि आप डेक ना चलाएं, अच्छी बात है। गवर्नमेंट कहती है कि आप रफ ड्राइविंग ना करें। भी अगर कोई बंदा कर रहा है तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस मर्ज़ की दुआ है? ट्रैफिक पुलिस जो वार्डन है, यानी पहले एक पुलिस वाला चौक के अंदर खड़ा होता था, पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करता था। 2002 के अंदर आपने ट्रैफिक वार्डन को तैनात किया, एक फ़ौज जो है वो हर ज़िले के अंदर एक पूरी फ़ौज आपने भर्ती कर ली, और वो 50-50, 70-70 हज़ार आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, जो इसी कौम के खून पसीने की कमाई है, जो टैक्सों की मद के अंदर आप ले रहे हैं। फिर उनको आप ये ड्यूटी दें कि आप अपनी ड्यूटी जो है, जो जिस चौक में आपकी ड्यूटी है वहाँ खड़े होकर ट्रैफिक को रवां रखें। लेकिन अफसोस ये है ना मेरे भाई कि ये ट्रैफिक तो कंट्रोल नहीं करते, ये तो 20-20, 30-30 चलान इनके ज़ुम्मे हैं, इन्होंने चलान पूरे करने होते हैं। यानी ट्रैफिक वार्डन कमाऊ पूत बन गए हैं, यानी इनको तो चाहिए ट्रैफिक कंट्रोल करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते बल्कि ये अपना जो वो चालान वाला टारगेट है वो पूरा करने आते हैं। अच्छा, मुझे ये भी साथ में आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हुकूमत आपसे आपके मुतालबात मानने से इनकार कर देती है तो आपके जहन में, चूँकि आप सदर हैं रिक्शा यूनियन के, तो आपके जहन में ये प्लान है कि आप जो है फिर वो स्ट्राइक की तरफ जाएंगे, एहतजाज की तरफ जाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल है जी। बहैसियत पाकिस्तानी किसी का दिल नहीं चाहता कि वो स्ट्राइक करे, अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करे। हम पुरअमन लोग हैं, हम यही चाहते हैं कि अच्छे अंदाज से टेबल पे बैठ के चीज़ों को देखा जाए। वो जो पहले मैंने अपनी बात की है ना कि खुशामदी और इब्नुल वक्त लोगों से बचा जाए। वज़ीर आला साहब बड़ा अच्छा इक़दाम उन्होंने शुरू किया है, हम इसके अंदर उनका तावन भी करेंगे, उनके साथ मिल के इसको चैनलाइज़ करते हैं, रेगुलेट करते हैं इसको। और हकीकत है कि अगर गवर्नमेंट फिर अपनी वो सरकारी जो एक रवायात है इस मुल्क के अंदर हमारे कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से लोगों को अपने फ़ैसलों की भेंट चढ़ाते हैं, अगर इन्होंने लोगों को अपने फ़ैसले की भेंट चढ़ाने की कोशिश की तो फिर लामाला ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत जितना इनका हक़ है उतना हमारा हक़ भी है कि हम कानून के अंदर रहते हुए फिर एहतजाजी तहरीक की तरफ हम।
ठीक है जी, रिक्शा यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद थे और उनके कहना था कि अगर हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तो हम अपना आइनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। लेकिन रियासत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि एक एक शख्स के साथ, एक एक फ़र्द के साथ जो है, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर है, चाहे वो बॉडी मेकर है, चाहे वो डीलर है, उसके साथ उसका ख़ानदान वाबस्ता है, उसके बीवी बच्चे वाबस्ता हैं। अगर उन्होंने इन पर पाबंदियाँ आयद करनी है तो इनको मुतबादिल प्लान जो है वो ज़रूर दें। साथ में रियासत से ये पूछना भी ज़रूर होगा हमारा कि आखिर क्यों आप हर दफ़ा इनिशिएटिव ले लेते हैं लेकिन उसके असरात शायद आपके जहन में नहीं होते। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।